Hi, everybody. Welcome to the Insta Live uh, with Misfit Foundation, co-hosted by Rang and Nestam Sotis. हेलो अभी आपको बेहद स्वागत इसमें और बहुत खुशी हुई आप ज्वाइन किए तो आई विल जस्ट गिव एन इंट्रोडक्शन and then shuru karenge because there are some people who don't know Hindi. We will alternate between Hindi and English. Okay, मतलब आप जिसी भाषा में आप कंफर्टेबल हो उसमें बात कीजिए, ठीक है? लेकिन बीच बीच में मैं थोड़ा हम इंग्लिश में बोलेंगे, हाँ. And I will also keep typing the summary here. ठीक है? Okay. So today we have Abhi Gupta from Misfit Trans Youth Foundation. They are based in northern India, and a young person, apparently their first Insta Live. Okay, but I'm sure Abhi will enjoy it, and everybody else here also. So as usual, there are some regular followers and joinees. There are new people, and people sometimes will join halfway or later. They'll watch and listen a few weeks later also. So this is for everybody to bring first person multilingual narratives of intersectional queer trans people from across the world, and we believe in having very informal conversations because that way no one feels too conscious or nervous here, and also we talk freely. Okay, so and of course I always don't introduce myself quickly enough, but let me quickly introduce. I am Ritash, one of the co-founders of Rang Foundation. We are an pan-India grassroots intersectional queer trans collective, and we have about 5 more co-founders in different parts of India, and including a couple of them at the Indo-Nepal border. And we also come, people in Rang. It's a very small, unfunded collective, and we are of various castes, beliefs, ideologies, different gender, sexual orientation, language, age. We have lots of diversity in the small group at Rang. Okay, and हमने ये सब Insta Lives we started in a middle of 2023. That time we were doing maybe once a month. Then Nestam, which works largely in Andhra, in smaller towns of Andhra, again with young and people of all age groups. Actually one of the founders also is a non-binary ace like me, and also worked in the IT industry. Your voice is blinking, so I am not able to connect. I am talking loudly and slowly. Okay. तो या sometimes lag आ जाता है. You are not visible also. हाँ, so if I keep it nearby na abhi, what happens is that the face won't be fully visible, so I will keep moving it. ठीक है?
Okay, okay. Yeah. ठीक है. So I just want to quickly say that Nestam does the very tough, initiatives of talking about gender and sexuality in schools, because one of the founders teaches in school, and it is not easy in a formal institutional framework to be able to do that. Okay, so this is Mhm. broadly, an introduction to Rang and Nestam Sojesk. From Just want to quickly say one more thing. From December 2023, we've been doing these lives very frequently, and we made it weekly, fortnightly. We kept kind of changing the schedules a bit, but now for over a year we've done every weekend. So Mhm. Abhi is with the Misfit Trans Youth Foundation, which works with, I think, people, young trans people from largely northern India, but also now you're partnering with groups in South India, right, Abhi? Mhm. Yes, yes, yes. अच्छा. Yes, yes, yes. अच्छा, ठीक है. We are already like coordinating with some south companies or like Bangalore or Karnataka or this kind of Chennai. Hyderabad. It is Yeah. yeah, Hyderabad. So we are coordinating with the some other companies in Hyderabad or like uh, some other country. Sorry, companies in Hyderabad or Bangalore or like Chennai, and we are also coordinating with like some other the waste side companies also, south and west both. अच्छा, ठीक है. ओके. Yeah, तो and अभी. we are also like we are staying in north area, so yeah, we are coordinating with like we are try to coordinate with north also. मतलब like हम ये ज्यादा चाहते हैं कि हम नॉर्थ की साइड से नॉर्थ की कंपनी से ज्यादा कोऑर्डिनेट कर पाए, बिकॉज लाइक मतलब कि लोग यहाँ पे ज्यादा वो चाहते हैं अपॉर्चुनिटी, दे नीड अपॉर्चुनिटी इन नॉर्थ साइड because they are staying in north side, and like mostly community persons are residing in north, हाँ. like Gurgaon or Noida or Delhi. Like Delhi NCR is the base, base like main base is the Delhi NCR, and yeah, Gurgaon. There are some opportunity like Gurgaon is the second NRI city in the India. मतलब गुड़गांव को तो सब बोलते ही हैं कि वो एक एनआरआई अलग से सिटी है, बिकॉज लाइक इट इज अ हब ऑफ द कॉरपोरेट सेक्टर। लाइक यहाँ पे कॉरपोरेट सेक्टर्स का हब है एक तरह से, तो लोग ज्यादातर अपॉर्चुनिटीज, दे नीड अपॉर्चुनिटीज नॉर्थ साइड। बट बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि मतलब बहुत ज्यादा लाइक वो लोग दे आर लाइक बहुत कंफ्यूज रहते हैं, और मतलब कि उनके साथ में ऐसा भी होता है कि दे आर नॉट अफोर्ड इन नॉर्थ साइड, तो वो लोग मतलब साउथ साइड भी जाने को एग्री होते हैं। नॉर्थ साइड के लोग भी लाइक साउथ साइड में जाने को एग्री करते हैं कि हाँ ठीक है चले जाएंगे। लाइक मतलब जिनके साथ में बहुत ज्यादा जो बहुत ज्यादा मजबूर होते हैं, वो फेस करते हैं, चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं, लाइक फैमिली एक्सपेक्टेशन और employment expectation, so they are like they are not comfortable in north side, so they move to south. हाँ. Yeah. एक्चुअली और एक बात है, आप शायद पता नहीं कितना आपने सदर्न मेट्रोज में घूमे हैं, और क्योंकि Mm-hmm. एक्चुअल कंसंट्रेशन बैंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद में ही है. Delhi, Gurgaon, Mm-hmm. and Mumbai is no more the hub of the corporates. काफी कम है, Yeah, yeah. आप Mm-hmm. कंपेयर करेंगे तो forget Mm-hmm. about people who want to be away, or जिनका acceptance नहीं है. Even privileged cishet people tend to, if they want
very lucrative jobs or competitive, or even Mhm. otherwise, they have no option but to relocate to Bangalore, Hyderabad, or Mhm. Chennai. Yeah. Actually, Mhm. we can very proudly say, because of so many reasons, the way priorities Mhm. of Yeah, yeah, have definitely. shifted in the northern capital region, and with the new government coming in the NCR, I mean, Mhm. it's going to be a joke that they're going to Mhm. give priority to any kind of socio-economic, factors, or Mhm. needs of people who actually are underprivileged and seeking. So Mhm. in a way, I think ki, uh, though in southern India, um, people actually might feel socio-culturally alienated, but they will definitely have more safety, more stability in southern India, especially if you're Mhm. underprivileged. I can guarantee you that. Mhm. Yes, yes. So, actually, because you know what, आप शायद जानते हैं कि सी हम जो ट्रांसक्वियर लोग हैं, ठीक है, तो हमारा Mhm. जिंदगी क्यों क्या बोलते हैं, हमेशा थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ा क्या Mhm. ज्यादा स्ट्रेस में रहता Yes, yes. है ना, क्योंकि Mhm. बिल्कुल। हमारा व्हाट डू आई कॉल इट, इट इज नॉट जस्ट अबाउट सेफ्टी, हमारा Mhm. जो मानसिक संतुलन पे भी हमेशा कुछ हाँ, ना ये कुछ असर होता यस। रहता है। हाँ, हाँ। तो आप इसमें लाइक हम ऐसा अंडरस्टैंड करते हैं कि community is not mentally stable, हम्म, right? They are not mentally stable. I think there are some challenges, or everyone has more challenges, challenges. They thinking about their life. It is more challenging, or we are facing challenges in everyday life, like every day, and some of the here facing challenges on every hour, right? So they are not comfortable in their life, but yeah, they are surviving, or हम्म, they are try to survive, or they are try to come out. मतलब वो मूव करना चाहते हैं, मूव आउट करना, कम आउट, दे आर लाइक ट्राई टू मूव आउट, कि हम इन चीजों से बाहर निकल पाएंगे, या फिर हाँ निकल जाएंगे। और लाइक मोस्ट पीपल आर कम आउट। मैंने देखा है बहुत से लोगों को, दे आर लाइक वो कर पाए अपनी लाइफ में उन चीजों को, वो कम आउट भी हुए, और बहुत से लोगों ने बहुत सारी चीजें फेस करी, लाइक फैमिली एक्सेप्टेशन, और उसके साथ में मतलब कि सोशल एक्सेप्टेशन, कि सोशली भी एक्सेप्ट होना, मतलब ये तो सबसे बड़ी बात होती है कि सोशली हम एक्सेप्टेबल हो जाते हैं। और इसके अलावा मतलब कि और भी पार्टनर के साथ में होता है, और भी मतलब चीजों के साथ होता है कि वो उस तरह की मतलब एक थिंकिंग होती है सबकी, कि मतलब ऐसा कुछ अलग नहीं है, राइट? मतलब कुछ भी लाइक anyone is not like different, like we are being human. So like they also have right to live their life in their way, मतलब वो अपनी जिंदगी अपने खुद के तरीके से जी सकते हैं। जी, एग्जैक्टली, क्योंकि वो जो अभी हम बोल रहे थे कि ना, वो स्ट्रेस हमारे अंदर से ज्यादा बाहर से आता है हमारे ऊपर, है ना, कि अभी यस, भी जितना भी सोसाइटी आप एक्सेप्टेशन। हम्म, या। हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ, आई वॉज जस्ट फिनिशिंग ऑफ, तो आप उसके बाद आप या बोलिए। या हाँ, कि जितना भी हम एक तरफ जो क्या बोलते हैं, सो कॉल्ड एफर्मेटिव पॉलिसीज, लॉज, सब कुछ आ रहे हैं, और हम खुद बाहर निकल रहे हैं, आपने जो बोला ना कि वी आर कमिंग आउट ओपन, माइग्रेटिंग, रेसिस्टिंग, एंड ऑल्सो टॉकिंग, सेंसिटाइजिंग, फिर भी ना जो बैकलैश है उसके वजह से हमारे ऊपर इतना मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है। हाँ, हाँ। तो आप सो जस्ट कमिंग बैक
टू मिसफिट ट्रांस यूथ फाउंडेशन, आप लोग यू नो यू डू मेनली प्लेसमेंट, ठीक है, ऑफ ट्रांस यूथ, जो दे कैन बी फ्रॉम एनीवेयर बट probably from smaller towns, क्योंकि they also need to survive, right? And many times हाँ एक्सेप्टेंस भी कम है उनके लिए उसके वजह से। और उसके अलावा आप मतलब पूरा जो प्लेसमेंट करते हैं आप, वो कंपनीज को आप अप्रोच करते हैं वो, या वो आपको अप्रोच करते हैं, उनको सेंसिटाइज करते हैं, और यूथ को, ट्रांस यूथ को भी आप ओरिएंटेशन देते हैं, ऐसा है क्या? आप थोड़ा अपना तरीका बताएंगे? Like, first of all, like our first priority to providing placement, हाँ हाँ right? This is our first priority. And the second thing is, if anyone wants some other help, like they want to help, including shelter home, right? Or including training, or we are also conduct a training session for CV development, or we are thinking about to conduct session about LinkedIn profile enhancement, or how to we can how enhance our profiles, or we are also thinking about conduct session for how to use ChatGPT, how to use Canva. So we are thinking about our future, right? How can we explore our future? So हम मतलब कि उनको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, एंड दे आर कंफर्टेबल, एंड इंक्लूडिंग this we are also conducting a session, like a event every month for for community, like they coming in the online platform like Zoom or Google. They are coming, and they enjoying the event, like uh, we are conducting like कंपटीशन टाइप, लाइक हम कंपटीशन टाइप का कंडक्ट करते हैं, एंड लाइक दे आर सिंग, दे आर डांस, एंड मोस्टली दे like ask their stories or poetry. So like we are increasing our limits for the community, and like हम कंपनी के साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं, वी ऑलवेज फाइंडिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर दोज पीपल हु आर मतलब उनको बहुत ज्यादा जरूरत है। लाइक मेरे पास में दिन भर में 4 से 5 ऐसे लोगों का मैसेज जरूर आता है, जो लोग मुझसे ये बोलते हैं कि सर प्लीज मेरी जॉब के लिए करवाइए, आई नीड जॉब, एंड like I'm surviving. I'm not in my home, and I'm not comfortable with this job. Like वो लोग अपनी जॉब चेंज भी करना चाहते हैं, because they wants to open but they can't, right? They can't कि वो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, दे वांट्स टू ओपन, बट वो समझ रहे हैं अंदर से चीजों को कि दे आर नॉट, मतलब यहाँ पे वो चीज एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी, तो हम ओपन हो नहीं सकते हैं। और लाइक वो फिर उस चीज को लेके फिर वो बात करते हैं कि मतलब कि हम इस तरीके से नई चीजें कर पा रहे हैं, और वी वांट टू ओपन, और हम कुछ इंक्लूसिव वो चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो इंक्लूसिव हो, दे आर अंडरस्टैंड, और दे एक्सेप्ट, मतलब वो हमें हमारी आइडेंटिटी एक्सेप्ट करें, तो वो चीज ज्यादा मैटर करती है। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट, एंड ऑल्सो वी आर like we are thinking about to like post create a job portal for they are like we are thinking about it, and we are working on it कि हम एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करें, एंड जिसमें लाइक कॉरपोरेट्स एंड जो भी एम्प्लॉयज हैं और जो भी कैंडिडेट हैं, दे आर कनेक्ट विद द पोर्टल, एंड
like corporates are sending their opportunities in the portal, and candidate will apply directly, right? So we are like we are trying to do that, but it will take time. It will not like बहुत जल्दी वो चीज नहीं हो पाएगी. It will take time, but yeah, we will do definitely do that thing. And like some like you know अगर हम वाकई में चीजों को बहुत बेहतर तरीके से देखना चाहें और देखें तो लाइक बहुत सारे चैलेंजेस हैं. सीरियसली बहुत सारे चैलेंजेस हैं लाइफ में. मैं यही नहीं बोलूंगा कि ओनली फॉर कम्युनिटी, राइट? कम्युनिटी से बाहर भी जो लोग हैं उनकी भी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट इंक्लूडिंग कम्युनिटी को अगर लेकर आए तो अगर एक एक हम वैसे इंसान को देखें कि वो अगर अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है तो फिर हाँ उसके हिसाब से तो फिर कम्युनिटी का स्ट्रगल तो ज्यादा है. क्यों? क्योंकि उनके साथ मतलब दे आर नॉट प्रिपेयर मेंटली. वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है. सबसे बड़ी बात ये है उनके लिए. डिस्पोरिया इतना ज्यादा है, लाइक बहुत ज्यादा फील होता है. किसी किसी को नहीं होता है, लेकिन किसी किसी को बहुत ज्यादा होता है कि मतलब अभी देखिए कितने लोगों का न्यूज आया था पहले कि दे आर कमिटेड सुसाइड, राइट? तो Mm. दिस थिंग इज not acceptable, this thing, because suicide is not a solution, right? Suicide, like suicide कर लिया चले गए, and like क्या मैसेज आपने लोगों को दिया इस पे? इससे लोगों को क्या मैसेज जाता है? इट इज नॉट फॉर जनरेशन, क्योंकि आज की जो जनरेशन है और 90% लोग हैं जो साथ में रह रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे परेशान हैं. ऐसा नहीं है. बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कम्युनिटी में होने के बाद भी बहुत खुश हैं. दे आर हैप्पी इन दियर लाइफ, लाइक राइट. दे आर नॉट सर्वाइविंग दियर लाइफ. वो अपनी जिंदगी को अच्छे से जी रहे हैं, खुश हैं. उनकी फैमिली ने उनको एक्सेप्ट करा है, सारी चीजें बहुत अच्छे से हुई हैं उनके साथ में. सो दे आर हैप्पी in their life. So everyone is not one position. There are many persons, and every person has a different issue, not the same. So we need to understand. And I think the corporate sector, MNCs, they need to understand for everyone, right? Not for only community, but they for everyone. They need to understand what are the issues faced by community, and like they are they need to more understand. हाँ, तो अभी फैंटास्टिक समरी, एक्चुअली समरी ही नहीं, आपने थोड़ा क्या है इंसाइट्स दिया, Mhm. क्योंकि Yes. कई तरह के लोग हैं. देर आर सम, Mhm. यू नो, एज यू सेड, Mhm. who are happy, some who are barely surviving Mhm. and unable to open up, and therefore Mhm. and of course, you know, they need better jobs, or they need some stable job and a safer accepting environment, so they therefore they Mhm. need to relocate. Some unfortunately, you know, go to the extreme of ideating, attempting, or even committing, you know, suicide. So there are Mhm. all kinds. और हमें दो चीजें पूछना है आपसे, Mhm. कि यू नो, आप जो पूरा वो हमने पूछा ना थोड़े देर पहले, कि Mhm. कंपनीज को भी आप सेंसिटाइज करना पड़ेगा सभी लेवल्स पे, है ना, कि हमारे, We are also doing. हाँ We हाँ are also doing that. हाँ हाँ, Yeah. वही वही. Some of companies are not sensitized. Like हम्म. recent, it is like ये अभी एक पास का ही है कुछ कि like which company, actually I forget the name of the company, but we are
sensitize them through Zoom. Okay. Huh. Yeah, Piramal Capital. Mm, mm, mm. Yeah, they are sensitize them because they want to hire some community person. Okay. Yeah, but yeah, one of my friend he said like पिरामल मतलब वहाँ पे कंपनी में बहुत प्रेशर करते हैं एंड द लाइक जो भी वहाँ पे जॉब करेगा उसको बहुत ज्यादा मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए ही इज लाइक प्रिपेयर मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर राइट बिकॉज वो लाइक वहाँ पे बहुत टाइम का देर आर नो टाइम लिमिट फॉर वर्क तो लाइक वो यही बोल रहा था कि वहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है और प्रेशर है चीजों में तो उस चीज को लेकर फिर वी आर थिंकिंग अबाउट टू सेंसिटाइज देम और एक और कंपनी है चमन भैया वो जानते हैं तो उनको भी बोला था कि उनको भी मतलब उनके साथ भी कुछ मीटिंग वगैरह करेंगे तो सेंसिटाइज करना बहुत जरूरी है एक वो चीज होती है ना कि उनको पता होना चाहिए लोगों के बारे में कि हु इज ट्रांस और व्हाट इज ट्रांस और मतलब कि हमको उनके साथ में कैसा बिहेव करना चाहिए ट्रांस ट्रांस इज नॉट अ एनिमल राइट ट्रांस इज लाइक ह्यूमन बॉडी और दे हैव माइंड दे हैव बॉडी और लाइक वही उतना ही होता है हाथ पैर मुंह आंखें सारी चीजें उतनी ही होती हैं और कुछ अलग नहीं होता कुछ डिफरेंट नहीं होता है बस या ऐसा है कि लोगों का थिंकिंग सोशल एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि सोशली लोग एक्सेप्ट करें उस चीज को तो वो चीज अलग हो जाती है कि लोग एक बात की 10 बात बनाना और इशू क्रिएट करना और लाइक टॉन्टिंग कमेंटिंग इट इज नॉट गुड और लाइक वो एक अच्छा सिंबल नहीं होता है कि हम किसी चीज को क्या बोल रहे हैं प्रेजेंट कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं और वो चीज ठीक नहीं है तो हमने ट्राई किया है और हम आगे भी मतलब और करेंगे ट्राई कि हम ये चीज कंटिन्यू रख पाए उस चीज को हाँ और जब आप सेंसिटाइज करते हैं ये कंपनीज को हाँ प्लेसमेंट के पहले ठीक है तो उधर यस तो एक बार करने से होता नहीं ना बार बार यू हैव टू रिपीट एंड एट ऑल लेवल्स मतलब ना लाइक could be HR, could be executive senior yes management, definitely middle management, including even हाँ yeah down to security, including upper security, management yeah, security, yes, housekeeping, depending on how yes. large the company Yeah, is. yeah. Yeah. I also conduct a session in Godrej Properties for sensitization in like uh, we are including down team, housekeeping team or upper management. Mm. And yeah, so I also conduct a session in Godrej and I provide all the like challenges or all the मतलब कि जो भी अचीवमेंट चैलेंज जो भी मतलब चीजें होती है वो उनको एक्सप्लेन करना तो लाइक दे आर अंडरस्टूड ऐसा नहीं है कि Mm. वो अंडरस्टैंड नहीं करते उन चीजों को दे आर अंडरस्टैंड मतलब हाँ वो उन चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं जब तक हम किसी को कुछ बताएंगे नहीं तो लोगों को पता कहाँ से चलेगा जाहिर सी बात है कि लोग किसी भी चीज को गलत समझने लगते हैं कुछ भी इंसान किसी को एक कहेगा और चार सुन रहे हैं तो फिर वो उस एक को ठीक कहेंगे और वो चार उस एक के साथ में मिल जाएंगे वो भी उसको गलत ही कहने लगेंगे तो ऐसा नहीं है अगर एक भी कोई इंसान ऐसा होता है कि नहीं वो उस चीज को बोल सके मतलब आवाज उठाना सबसे बड़ी बात यही होती है कि वो अपने लिए आवाज उठा सके एटलीस्ट अगर कोई एक भी इंसान बोलेगा तो फिर मतलब ऑटोमेटिक सब समझ जाएंगे उस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि नहीं यार वो चीजें ऐसे होती हैं एंड मतलब कि हम ऐसा ना करें किसी के साथ में और लाइक दे आर अंडरस्टैंड वो अंडरस्टैंड करते हैं फिर चीजों को अलग अलग वे से करते हैं बट या करते हैं
बट और तो ठीक है, लेकिन उधर एक सेकेंड, हाँ, जब ये आप कंपनीज को जाके सेंसिटाइज करते हैं और सभी लेवल पे करना पड़ता है, आप वही बोल रहे थे ना, तो यस यस एंड वो तो अहम बात है, और लाइक वो तो सभी जगह होना चाहिए कि डिफरेंट लेवल्स पे, एंड देन यू से कि कभी कभार हम नहीं बताएंगे तो वो लोग कैसे जान पाएंगे, ठीक है, लेकिन see, sensitization may usually many of them, even if it is new, they are polite and understanding and respectful and everything. लेकिन जब लोग उधर हमारे कम्युनिटी, लाइक ट्रांस कम्युनिटी, स्पेशली इफ दे आर यूथ एंड say from places already जो जिनके फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं है, तो ऑलरेडी they are in some kind of trauma, काम करना चाहते हैं, लेकिन हाउ आर द कंपनीज बिहेविंग टुवर्ड्स दीज एम्प्लॉइज, जो मतलब ना सी एक दो बार सेंसिटाइजेशन में काफी कुछ पता नहीं चलता उनको हमारे बारे में और हमें उनके बारे में, ठीक है, लेकिन जब ट्रांस लोग उधर जाके काम शुरू करते हैं डेली बेसिस पे, so how do they feel? What has been the feedback from the community? You don't have to name any organization, but I just want to know, because abhi kya ho raha hai? I mean, there are two things which are happening, right? One is कि ये जो DEI rollbacks हो रहे हैं ना, तो the investment in DEI कम हो रहा है, and unfortunately I'm not saying it was unpredictable, बट बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, ठीक है, वो एक बात, एंड समटाइम्स whether we like it or not, there is a difference between MNCs and Indian companies, whether they are large or small or medium sized, है ना, some of these MNCs उनके देशों में they are supposed to be affirmative, right, but so because of which थोड़ा बहुत they slightly better, but इधर इंडियन लोग बैठते हैं ना, so their approach is there, दो हमारे इंडिया में ट्रांस लोग हजारों सालों से हैं, जब से लोग आए हुए हैं तब से हैं, लेकिन फिर भी, so essentially what is the feedback from the community after they start working in these large or medium sized organizations, whether it's an Indian company, foreign company, whatever, India में है उनका ऑफिस, तो ये लोग जाके काम कर रहे हैं, और आपने उनको समझाया कि हमने सेंसिटाइज किया है कंपनी को, थोड़ा बहुत आपने हमारे कैंडिडेट्स को भी प्रिपेयर किया है, मेंटली प्रिपेयर किया है, थोड़ा बहुत स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, वो सब किया होगा, लेकिन जब हर रोज जाके उधर काम करते हैं, उनका फीडबैक कैसा रहा है? हाउ आर दे फीलिंग? like see, there are different kind of role, right? Like there are different kind of person, okay, and अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है, जैसे कि जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का लाइक देर आर मोस्ट of large companies like Godrej or JP Morgan or Pepsi and Deloitte, right? And some other companies are including. So like मतलब वहाँ पे ना वहाँ पे जब किसी ने काम किया, कुछ लोगों ने वहाँ पे ज्वाइन किया और वहाँ का एक्सपीरियंस फील किया, सो लाइक they are okay with that, like they are comfortable in working there. So and some of organization are like, I am not uh, including any name, but yeah, some of organization was is not good, like
some candidate are joined and they are not feeling well. They some persons are taunting them or commenting them. Who are you? And what is your identity? And what are you doing here? Who hired you? So that is not good manner to talk anyone or answering anyone. So it is not गुड फीडबैक ऑफ कंपनी। मतलब वो कंपनी का कल्चर ही पहले से ही वो चीजें ऐसी होती हैं कि मैं अच्छी कंपनियों का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं उनका नाम दे सकता हूँ, बट जो कंपनियां उन चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करती हैं, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग देयर फीलिंग्स और देयर लाइक वो अच्छा काम करके भले ही उनको दे रहे हैं, बट होता नहीं है किसी के अंदर। अगर बहुत शुद्ध भाषा में, बहुत हिंदी में बोले तो किसी के अंदर वो होती नहीं है, बहुत चुल टाइप की होती है कि लोगों को गलत कहने में ही उनको बड़ा सुकून हाँ, मिलता है। And okay. they are feeling more comfortable to taunting anyone or commenting anyone. So it is not good for them or for community also. तो मैं उन कंपनियों का नाम नहीं लूंगा जी क्योंकि मैं किसी को पॉइंट आउट, मैं लाइक आई एम नॉट पॉइंट आउट एनी कंपनी और एनी पर्सन। आई एम जस्ट आंसरिंग कैजुअली कि सोशल जो भी सोशली चल रहा है वो क्या चल रहा है, एग्जैक्टली वो चीज क्या है। कि वो चीज वही है कि कुछ लोग बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, तो फिर उसका मतलब कि जैसे जिसके साथ में जो जैसा बिहेवियर करेगा उसका उसके लिए फीडबैक वैसा ही हो जाएगा। लाइक जैसे कि लाइक आई एम ज्वाइनिंग अ कंपनी, राइट, एंड टुडे इज माय फर्स्ट डे और मैं पहले दिन ऑफिस गया एंड वहां पे मैं गया तो अ, मुझे क्या मतलब किसी को भी ले लो, कोई भी इंसान वहां पे गया और लोगों ने उसको ऐसे देखना, बस स्टार्ट किया देखना और बस देख ही रहे हैं। व्हाट इज दिस? व्हाई आर यू सीइंग एनी पर्सन लाइक दिस? इट इज नॉट गुड, राइट? बिकॉज कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है कि उस चीज को वो मतलब कुछ भी करे, वो कुछ भी बोल रहा है तो हाँ ठीक है, इग्नोर भी कुछ होता है कि हम इग्नोर कर देंगे और उस इंसान ने इग्नोर कर दिया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई बात नहीं, बोल रहा है बोलने दो। कुछ लोग ऐसे होते, बट सम ऑफ द पर्सन आर फील देम फीलिंग इट, लाइक वो लोग फील कर लेते हैं कि ऐसा क्यों बोल दिया और ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ज्यादातर लोग उसको फील ही करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं कि वी आर ओनली डूइंग आवर वर्क एंड जस्ट गो टू द होम एंड या दैट्स इट्स ऑल। तो मतलब कि वो चीजें मैटर करती हैं कि लोग वहां पे जाके कंफर्टेबल फील कर रहे हैं क्योंकि कंपनी का कल्चर वो है, और अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं क्योंकि कंपनी का कल्चर ही वो नहीं है। जब आपका एचआर ही आपको देखेगा, कंटिन्यू देख ही रहा है, आपका मैनेजर भी आपको कंटिन्यू देख ही रहा है, व्हाट इज दिस? अदर एम्प्लॉयज आर ऑल्सो सीइंग यू, राइट? और अदर एम्प्लॉयज भी देखेंगे ही, फिर वो ऐसा नहीं करेंगे कि लाइक हम नहीं देखते हैं एंड कोई बात नहीं, फ्रेंडशिप करते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है ऐसी बड़ी बड़ी, जैसे मैंने बताया जेपी मॉर्गन एंड एचपी और सम अदर बार्कलेज, वी वर्क और एशियन पेंट्स और एप्पल। तो दीज ऑर्गेनाइजेशन वाज लाइक परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन कि वहां पे कोई एम्प्लॉय जाता है तो दे आर वेलकमिंग देम, कि वो वेलकम करते हैं, वो वार्मली वेलकम, राइट? दे आर नॉट टॉन्टिंग देम और कमेंटिंग देम और सीइंग एज लाइक दे आर स्ट्रेंजर। So some companies here who are understand, some companies are not understand. So employee, like it is depends to the company what I feel, what an employee are feel. It is depends to company और company's culture. तो बहुत से अच्छे कमेंट्स भी आते हैं और बहुत से बुरे कमेंट्स भी आते हैं। जो बुरे आते हैं वो उसका उस टाइप की कंपनीज होती हैं एंड सम अदर जो गुड कमेंट्स है होते हैं उनके नाम मैंने मेंशन किए हैं। um okay, हाँ,
तो अच्छी बात है। एंड जब हम्म, आपको ये अच्छा फीडबैक मिलता है तो लोग भी कंटिन्यू करेंगे, दे विल कंटिन्यू वर्किंग उस ऑर्गेनाइजेशन हम्म, में। और आप भी, बाकी आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आया होगा कि हम्म, यू कैन रेकमेंड दैट कंपनी टू अदर पीपल। हम्म, लेकिन जब इनसेंसिटिविटी, मिसबिहेवियर, ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं, तो हम्म, आप सपोजिंग you have sensitized the company employees and you have yeah, yeah, replaced, definitely. हाँ हाँ, and this person got placed, तो जब उनको उधर the I mean she they whatever they may be हम्म, facing this kind of disrespectful behavior from colleagues, तो क्या हम्म, करते हैं? हाउ डू यू टेक इट फॉरवर्ड? डू यू लीव इट टू द ट्रांस एम्प्लॉई टू कंटिन्यू और नॉट? डू यू गिव सम no, no, सपोर्ट एंड गिव yeah, नेगेटिव फीडबैक टू द एम्प्लॉयर? हाँ, क्या कैसे करते हैं, कैसे संभालते हैं? yeah, we definitely sensitize them. मतलब हम कंपनी को और ज्यादा सेंसिटाइज हम्म, करते हैं कि लाइक अगर कुछ एम्प्लॉयज हैं, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, they are not able to accept them. So we are also conducting session for sensitization. एंड हम ऐसा नहीं करते हैं कि वो कंपनी खराब है तो आप उसको छोड़ दो, दे आर नॉट गुड और दे आर नॉट अंडरस्टैंड, so you like left the job. No, no, it is not good. It is not good for them or us करेक्ट, करेक्ट। both. Yeah, so we are sensitize them. मतलब हम उनको सेंसिटाइज करते हैं, लाइक सारी चीजें बताना, सब कुछ। अगर कुछ को देखिए, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कम शब्दों में ज्यादा बात करते हैं, जी। राइट? जिनको मतलब कि हम एक बार कुछ भी समझा दे रहे हैं या फिर हम थोड़ी सी ही बात कर रहे हैं उस बारे में, तो दे आर अंडरस्टैंड द होल थिंग, हम्म, राइट? दे आर अंडरस्टैंड द होल थिंग कि नहीं, अगर ऐसा है तो व्हाट इज द मेन रूट, what is the main root, and the person wants to understand, right? कि वो, हाँ, कोशिश करता है उस चीज को अंडरस्टैंड करने की, कम चीजों में ज्यादा बात वो समझ जाता है उस चीज को। बट हम्म, देर आर सम अदर पर्सन हु आर नॉट अंडरस्टैंड, लाइक उनके सामने तो आप पूरी कहानी भी रख दो, बट दे आर नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट, दे कांट एक्सेप्ट। अच्छा, हाँ हाँ, तो बिल्कुल। हम, हाँ, सॉरी सॉरी, बोलिए बोलिए, हाँ। मतलब तो हम वी आर ट्राइंग टू सेंसिटाइज देम, और अगर वो उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो वी आर कंटिन्यूइंग, इफ दे आर डिनाइड इट सो वी also denied it. We are not we are not like community is not an animal, right? Community या is human being. Yeah. So they have right to take action. They have right uh, to like what is the word? Actually, I forget it. Like उनके पास मतलब कि राइट है उन चीजों को ऑब्जर्व करने का, और उनके पास भी राइट है अच्छे से काम करने का, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से रहने का, अच्छे से लाइक देर आर एक चीज और है, वो बहुत अच्छी है कि अ, अगर आप देखेंगे तो कम्युनिटी में आपको क्या बोलते हो उसको, अरे वो धीरज, वो धीरज। वर्ड मेरे, नहीं नहीं, क्रिएटिविटी, अच्छा, या। ओके ओके, So हाँ। yeah, there are most of people who are more creative, right? Like हम ऐसा सोच भी नहीं सकते कि वो इतने क्रिएटिव हो सकते हैं, बट दे आर क्रिएटिव, उनके पास में इतनी अच्छी क्रिएटिविटी है, दे आर कैपेबल, दे आर क्रिएटिव, लाइक वो कंपनी को ऐसा काम देते हैं कि मतलब, हाँ, कंपनी को लगता है यार, नहीं कोई तो बात है बंदे में, नहीं कुछ तो काम है। लाइक अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो आई एम होस्टिंग इवेंट,
राइट, मैं इवेंट को होस्ट करता हूँ, मतलब कोई जल्दी माइक पकड़ने के लिए रेडी नहीं होता है बिकॉज दे आर नर्वस, बट आई एम कॉन्फिडेंट बिकॉज मेरी सोच ये है कि इफ यू आर थिंक अबाउट दैट, कि अगर आप उस चीज के बारे में सोच रहे हैं कि नो आई कैन डू, मतलब हम ये नहीं सोचेंगे कि कर सकते हैं, हम कर लेंगे, Hmm. अगर हम ये सोच के कोशिश करेंगे तो वी आर डेफिनेटली डू दैट, हम उस चीज Fantastic. को कर हाँ. पाएंगे। यस, तो फर्स्ट टाइम जब मैंने माइक होल्डिंग की थी तो दैट इज द a horror scene for me, like there are a bunch of the public, right, and I am the who I am holding mic, और uh, लाइक मैंने ही वो सेशन किया था एक्चुअली, मैं ही इवेंट्स होते थे वहाँ पे, सो आई एम ऑर्गेनाइजिंग इवेंट ड्यूरिंग द फेस्टिवल टाइम, सो आई एम ऑर्गेनाइजिंग इवेंट एंड माइक होल्डिंग, और मतलब ये सारी चीजें मुझसे कोई करने को नहीं कहता था कि अभी तुम करो और तुम्हें तो करना पड़ेगा या फिर ये तुम्हारा काम है, दैट इज नॉट माई वर्क, बट आई एम इंटरेस्टेड फॉर डू दैट, मैं खुद इंटरेस्टेड था उस चीज को करने में कि या आई वॉन्ट टू होल्ड माइक एंड आई वॉन्ट टू होस्टिंग द इवेंट, और आई वॉन्ट टू कंडक्ट द ट्रेनिंग और होस्टिंग द ट्रेनिंग। तो मैंने मतलब कि बहुत सारी ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज करी है, खुद से ही मैंने उनको ट्रेनिंग भी दी है, एंड उसके बाद में मैंने बहुत से इवेंट भी ऑर्गेनाइज करे हैं, खुद से ही मैंने सारी चीजें करी हैं इवेंट के लिए, तो मतलब कि कैपेबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग, कैपेबिलिटी, लव और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर आप उस दुनिया से निकल के इस दुनिया में आओगे तो वो चीजें आपको ज्यादा क्रिएटिव लगेंगी, आपको वो चीजें ज्यादा अट्रैक्टेबल लगेंगी कि यस आई लाइक, हाँ यार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हाँ यार ये भी कर सकते हैं, इस तरह का तो मतलब होना चाहिए, और बहुत सा ऐसा है भी कि लोग कम्युनिटी से सीख रहे हैं कि जिया कैसे जाता है जिंदगी, है ना, कोशिश कर रहे हैं लोग जीने की कि नहीं यार वो होता नहीं है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, वही वाला हाल है कि लोग देख के जी रहे हैं कि यार चलो कोई नहीं, सरवाइव करते हैं, और इतना भी क्या है, हमसे भी ज्यादा लोग परेशान हैं, ऐसे करके जब सोचता है इंसान तो इंसान सरवाइव कर लेता है। हाँ, यस, बट ये हाँ, सो लोग आप बोल रहे हैं कि ये बढ़िया और बहुत अहम बात कि लोग जो पहले गम में थे या क्या है डर में थे, बाकी लोगों को देख के शायद आपसे भी वो हिम्मत पाते हैं और जीना सीखते हैं, and that is when they are able to, as you say, move from survival mode to living mode. ऐसा है ना, आपने ऐसा ही बोलने का कोशिश, हाँ हाँ हाँ. यस। Hmm. Fantastic. That is such an important thing. Because, especially, see, there is no judgment, or, it is actually tragic that some people are not able to do that for various reasons, internally, externally. And, yeah, but yet, जब शायद बिकॉज आपका जर्नी भी it wasn't easy, right? In terms of, आप adapting, आपने relocate किया और भाषा सीखा and all that. आपको भी आपने बोला किसी ने शायद कोचिंग नहीं दिया होगा, कोई कंपेल भी नहीं किया होगा, लेकिन अपने आप सीख गए एट अ यंग एज, एंड यू आर बीइंग, डेफिनेटली। आप इंस्पिरेशन हो गए हैं बाकी लोगों के लिए, शायद बिकॉज देर आर सर्टन थिंग्स कि हम सब कुछ सिखा नहीं पाएंगे ना, जितना भी आप ट्रेनिंग्स करेंगे, हाँ, लेकिन आपको देखने से, शायद आपकी स्टोरी सुनने से, इसीलिए हम ऐसे लाइव्स भी करते हैं। और आप जब आपने बोला ना कि इनिशियली व्हेन यू स्टार्टेड होल्डिंग द माइक आपको थोड़ा बहुत सेल्फ कॉन्शियसनेस हुआ, लेकिन उसके बाद, लेकिन आपको किसी ने जबरदस्ती नहीं किया,
लाइक शायद थोड़ा बहुत बढ़ाव किया, लेकिन बट द बिगेस्ट एडवांटेज इज आपको वो स्पेस मिला, यू गॉट द स्पेस एंड द सपोर्ट कि यू कैन बी योर सेल्फ एंड टेक योर टाइम. ठीक है. Yes, yes, definitely. And which is why you are not that with that maybe specific objective, but by using that space, opportunity, time or something, you have grown Mm, आप और आप वही बाकी लोगों के लिए भी क्रिएट करना चाहते हैं, बिकॉज दैट इज mm, व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, है ना. लाइक एंड मे बी समटाइम्स आप जो बोल रहे थे ना, एंड देन just want to tell our listeners, viewers ki I joined almost midway a pre-Christmas event जो अभी ने conduct किया. अभी conducted a very nice online, very informal pre-Christmas event in December 2024. I got a misfit invite, but due to some other commitments I could not, but luckily I joined, and it is so memorable and so enjoyable. And there were so many people over there reading poetry, just expressing themselves. Udhar agenda tha ki nahi agenda? No, the agenda was to not have an agenda, right? It was just to have fun, to enjoy, to relax, to chill, and to express. And it, I think, brought out some lovely sides to people ki jo pehle kabhi baat nahi kiya, somebody who had not read poetry or who had not even shared anything na, and abhi did it like a pro. Matlab na, it looked like ki koi some very professional event manager is mm. hosting it. So abhi really congratulations. Actually, that it is my first हाँ time actually हाँ online event. Yeah, it is my हाँ first time. हाँ हाँ. नहीं, but it was Mm, fantastic and so memorable. I don't get tired of telling this because लेकिन हमारे community के लिए वो चाहिए. हाँ, and we need to do. mm, It's not easy to do, है ना, because mm, that too people who you didn't know were joining, leaving and all that stuff. हाँ, and but फिर भी, and I think, and आपने जैसे बोला ना कि it's important for us because people, first of all, our community doesn't have much physical space or even online space or opportunity to relax, to chill, to enjoy in a safe environment, है ना, in a non-judgmental environment. yes, जी. mm, And we learn so many things from that. No, we learn about each other, but we learn also, we also grow, na. तो right, हाँ, definitely. या तो अभी आई मीन इट्स ऑलमोस्ट 1 hour जब से हमने शुरू किया बात करना. एंड बट और क्या बताना चाहते हैं? could you tell a little, whatever you're comfortable, थोड़ा आपका पर्सनल जर्नी कैसा था? You said you moved to NCR and from UP. Mhm. आप अपने बारे में थोड़ा बता सकते हैं तो. Yes, yes. Actually, I started my career in 2014. When I was, uh, I I completed my graduation in CSDM University, and when I was doing graduation, it is my second year. I have joined a hotel. Like there are management. I am seeing management and like hotel management. My post is hotel management. So like I am handling a team, and it is that is my first experience in like company or in a uh, working space. So like I am some hesitate to working in hotel or like लोगों के बीच में रहना, काम करना, और there are many things to I am thinking about that. So I started my career in 2014, and after that I changed my role in 5 times. Like I was started my career as a management, and uh, my second
role is administration, and my third role is uh, hospitality. And I also worked with Flipkart for some time, and it is contractual based job. Yeah, and I was working in Gajendra Engineering also. It is in Chhattisgarh. So my career journey is good. And about my uh, personal life, so my family is supporting me, and they are supported me, and I am like मुझे कभी भी there are no need to support. Like I don't need any support for that time also. मैं मुझे उस टाइम भी सपोर्ट का नीड नहीं था, बट या पेरेंट्स आर डिफरेंट थिंग, राइट? कि पेरेंट्स के साथ में उन चीजों को मतलब मैनेज करना, एंड उन चीजों को उस तरीके से करना, बट या माय पेरेंट्स आर लाइक वो एक्सेप्ट करते थे, वो स्टार्टिंग से ही मतलब एक चीज सबसे बड़ी ये होती है कि आपके साथ में वो चीज लाइक who is talking with you in what manner, it is depend to you. Like मैं अपने मेरे ऊपर ही डिपेंड है कि मैं सामने वाले से किस तरह से बात करता हूँ, सामने वाला उस तरीके से ही मुझसे बात करेगा, ठीक है? तो उसके ही अकॉर्डिंग कि मैं स्टार्टिंग में ही मैंने अपना जब करियर स्टार्ट कर लिया था सेकेंड ईयर में ग्रेजुएशन के, तो फिर मैं सेल्फ डिपेंड हो गया था। एंड द लाइक इस दुनिया का सबसे जो बिगेस्ट थिंग है वो होता है सेल्फ डिपेंड होना, राइट? कि इफ आई एम सेल्फ डिपेंडेंट, तो लाइक किसी के पास में वो राइट नहीं है कि वो फिर मेरी लाइफ पे कुछ भी कमेंट्स कर सके। एंड माई फैमिली आर लाइक मोर सपोर्टिंग। मेरी फैमिली ने स्टार्टिंग से ही मेरे साथ मुझे सपोर्ट किया, मेरी सिस्टर ने, मेरे फादर ने। एंड मतलब हाँ, वो लोग, अब कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि किसी के भी इंसान के साथ में वो सारी चीजें हो। एंड आई एम एग्री टू एक्सेप्ट दैट। एंड मतलब कुछ भी करो, एंड आई एम एग्री, सो इट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर पेरेंट्स और फैमिली। सो दे आर लाइक या सम टाइम दे आर reacting for that, why you are doing this, and what are you doing. It is not for your life, it is not good for your career, or we are not agree for that, but yeah, I am agree for that, and I am comfortable to live this life, to like live this life. So like मेरा जो भी मन हुआ वो मैंने किया, वो मैंने सेल्फ डिपेंड होके किया। और when I was done that, they are accept, मेरे करने के बाद में फिर उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया, और दे सपोर्टिंग मी। सो आई डोंट थिंक कि पेरेंट्स फैमिली दे आर मतलब वो इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं किसी भी चीज को, किसी भी बदलती हुई चीज को, किसी भी अलग चीज को, या फिर कुछ भी कैसी भी चीज हो। हमारे घर में अगर कोई छोटी सी चीज भी हम लाते हैं, लाइक वी आर बाइंग अ कार और वी आर बाइंग अ फ्रिज, तो हम उसको मतलब उस तरीके से हम एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ, हम उस चीज को लेकर आए तो आई एम केयरिंग फॉर इट, और हमें उसकी केयर करनी है, हमें ये सारी चीजें करनी है, तो वो चीज अलग हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। इधर यहाँ पे सबसे बड़ा फंडा तो फाइनेंशियली है कि इंसान फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए। So that time I am stable financially or mentally also. So I am doing that what I feel, what I want. First I prioritize my need, my want. After that I like answer them why I am doing this. And yeah, हाँ मतलब yeah, as you see, nobody's life is so smooth. Nobody's life is without hurdles. But एक तरफ the way we communicate with the people who matter to us and to whom we matter,
वो बहुत अहम बात है, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। हम्म, बट फिर भी कि अगर वो समझना नहीं चाहते हैं या एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, when you are being not just self reliant and self confident, but also कि you're standing your ground, you know कि आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी है ना, कि यू आर इन अ वे शोइंग दैट yes, I understand why you're asking me, I will try to you, but if you do not uh, you know uh, want to accept it, maybe it is also that they're not respecting your decisions, your whatever interest, your objectives. तो तब आपने अपना खुद का हिम्मत नहीं छोड़ा, राइट? इट्स नॉट no, इजी। no, no, बिल्कुल भी हम्म इट इज नॉट इजी फॉर मी, बट या आई लाइक, देखिए सबसे बड़ी चीज वही होती है ना, कॉन्फिडेंस। इफ यू हैव कॉन्फिडेंस और यू आर कॉन्फिडेंट, so you can achieve everything. You can achieve everything if you have confidence. So I have so much confidence for every time. For now, for before 2 years before, 3 years before, or 10 years before, or after 10 years, I have the same confidence. Yes. या हाँ, तो मे बी as you said कि while seeing your confidence, and more importantly self respect, they decided to Mhm. accept, or they probably realized कि अगर वो आपको accept नहीं किया तो मतलब कुछ आप तो बदलने वाले नहीं हैं, राइट? आई मीन एटलीस्ट इन योर डिसीजंस। सो दैट इज so vital but very tough, ठीक है? And especially when you're not Mhm. that you're old now, but when you're much younger, और भी मुश्किल होता है, because there is a point when sometimes you're still reliant on your family emotionally, financially, so many ways ना, like for example, हाँ Mhm. हाँ Yes, yes. You can हाँ, नहीं continue. नहीं, I'm just saying that when you're say a teenager or something, slowly you Mhm. start becoming self confident, but it takes time, and you are not completely just very practically speaking, you can't be completely independent also, right? तो लेकिन अगर तभी if you showed your courage, your confidence, and your most Mhm. important self respect, then I think they had no option but to accept you, है ना? या ऐसा भी Yes. बोला जाता है। और Mhm. कुछ like how did you were talking about that hotel job, afterwards you changed jobs and then migrated to go NCR, और कैसा हुआ? हम्म, yes, मैंने जॉब चेंज करने के बाद में फिर अ, मैंने यहाँ गुड़गांव में जॉब ज्वाइन करी थी, बट आई लेफ्ट दैट बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इशू. सो आई लेफ्ट द जॉब एंड currently I'm working with Misfit Foundation as a program associate, and for like using CD or work for workplace, conducting workplace or webinar, online events, or CV screening, coordinate with the corporate, coordinating with the employees, candidates. They are calling me every time. I am really frustrated for Mm. that. They are calling me like if I am like I am doing dinner, right? I am having my dinner and they are called. Hello, yes sir, sir, I need job and my condition is not good. I leave my house, or they are not accepting me, so I am not. They are like some of persons said like my parents wants to marry me, like marriage, मतलब वो शादी करना जी चाहते जी, हैं कराना मेरी. चाहते हैं, And हाँ हाँ। so like it is not acceptable for me. Like they are लाइक कभी कभी तो ऐसा लगता है कि व्हाट आई डू फॉर देम, लाइक मैं ऐसा क्या कर दूं कि
वो मतलब कि उस चीज से निकल आए, वो उस चीज से परेशान ना हो। एंड फिर देन आई वाज लाइक कॉलिंग टू सम शेल्टर होम्स और सम organization who wants to help to the community, and they are providing accommodation or food, or like they are also helping some financially help, or they are providing training, they are like providing opportunity for them. So yeah, like everyone, सब मतलब उभर जाते हो उस चीज से, राइट? जैसे कि होता नहीं है कि कोई भी दुख आपके पास में लाइफ टाइम में रहने वाला है। हियर इज नो, एवरीथिंग इज लाइक टेम्परेरी, नथिंग इज परमानेंट, राइट? परमानेंट इज लाइक योर डेथ, डेथ इज परमानेंट, बट life is not permanent. Here are not anything is permanent. Everything is like destroy one day. So हम उस चीज को एक्सेप्ट करके चले तो जिंदगी ज्यादा आसान हो जाती है, राइट? कि हम किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम किसी के साथ में अच्छा कर रहे हैं, और वो हमसे मतलब दे आर कॉलिंग मी एट 11 एट नाइट, सो व्हाट दे फील, मतलब वो मुझसे क्या एक्सेप्ट कर रहे होंगे? वो मुझे 11 बजे फोन कर रहे हैं, रात में 12 बजे फोन कर रहे हैं, 10 बजे कर रहे हैं, 8 बजे कर रहे हैं, तो व्हाट दे एक्सेप्ट फ्रॉम माई साइड? फेवर ना, एक फेवर, एक हेल्प। और शायद उनको कॉन्फिडेंस है मेरे ऊपर, शायद वो ऐसा सोचते हैं कि नहीं यार, उस इंसान को फोन करे, ही विल हेल्प। तो वो चीज, अगर उस माइंड से सोचे और उस थिंक से सोचे, तो हाँ ऐसा लगता है कि अगर उनकी जगह पे हम होते और हम किसी को रात में 11 बजे परेशान होकर फोन कर रहे होते और ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, व्हाट आई फील दैट टाइम? आई एम नॉट फीलिंग गुड दैट टाइम। सो ये सोच के हाँ मैं फोन उठा लेता हूँ, हाँ मैं ये बोल देता हूँ कि आई एम लाइक, इतनी रात में भाई फोन क्यों कर रहे हो? कोई इमरजेंसी है क्या? कुछ प्रॉब्लम ज्यादा है क्या? चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो हाँ ठीक है। अगर मतलब कि हाँ तुम रोड पे बैठे हो, इमरजेंसी कि आई एम लाइक मुझे भूख लगी है, इमरजेंसी कि आई डोंट हैव एनी हाउस, आई एम ऑन फुटपाथ, राइट? मैं घर पे नहीं हूँ, मैं फुटपाथ पे हूँ, और दिस इज इमरजेंसी। बट मैं मतलब कोई वो भी नहीं है और फोन कर रहे हैं कि हाँ सर वो जॉब का बता दीजिए, तो इट इज नॉट करेक्ट कि आप किसी को रात में 12 बजे, 11 बजे, 10 बजे फोन कर रहे हो कि सर मेरी जॉब लगवा दो, है ना? देर आर टाइम लिमिट है। इसी से ही आपका एक वो जो विजन होता है वो उसी चीज से सेट होता है कि लाइक हम जानते हैं कि किसी भी कॉर्पोरेट बंदे को हम सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में ही फोन कर सकते हैं, इफ वी हैव एनी वर्क। अगर हमारे पास में कुछ काम है तो एज अ प्रोफेशनल वी आर कॉलिंग देम बिटवीन 10 to 6। हम्म। उसके बाद भी हम कॉलिंग कर उसके बाद भी हम कॉलिंग कर सकते हैं, बट देर आर सर्टन इमरजेंसी। अगर कुछ हमारे पास में इमरजेंसी है तो हम उनको 12 बजे, 11 बजे फोन कर सकते हैं कि हाँ हमें हेल्प की जरूरत है। तो ऐसे करके मेरे पास बहुत फोन आते हैं कि किसी को वाकई में हेल्प की नीड होती है तो उनकी हेल्प करता हूँ, कोऑर्डिनेट करता हूँ। और जिनके साथ में ये होता है कि जॉब लगवा दीजिए, तो मैं उनसे यही बोलता हूँ कि आई विल कॉल यू टुमारो, और प्लीज कॉल मी ऑन वर्किंग आवर्स। इस तरह की चीजें हाँ, होती दैट इज सच अ इम्पोर्टेंट थिंग आपने जो बताया अभी, क्योंकि ना हम लोग, कुछ लोग हु आर विद द ट्रांस कम्युनिटी, we do not just few minutes ago now we were talking about self respect. This is also part of हैं। self respect and self care, क्योंकि यस थोड़ा यस, बहुत बाउंड्री सेट करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं, जरूरी है करना। हाँ, ऐसा नहीं कि हम उनका दुख दर्द समझते नहीं, समझते हैं हम्म, इसीलिए कॉल उठाते हैं, लेकिन देर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट somebody's जॉब beyond 6 p.m. on a working day, right? और on a holiday तो हम्म, you definitely cannot do, ठीक है? तो हम्म, आई थिंक ऐसा बाउंड्री सेट करना नेसेसरी है, क्योंकि हम लोग जानवर नहीं है और बिल्कुल मशीन भी नहीं है, एंड मशीन को भी हम्म, हम सर्विसिंग करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, तो
the human body, the human mind also needs that break, needs that. Hmm. And whatever people may think, I think unless we do not, you know, have self care and communicate it, बाकी लोगों को भी समझना नहीं चाहेंगे. तो I think that is a fantastic thing, because I was just going to ask you कि what do you do to, you know, do self care, and I think this is of such an important, you know, Actually, हाँ, method to make, hmm, practice to follow. हाँ, बिल्कुल बताइए कौन. इस टाइम तो सेल्फ केयर हो ही नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ सम like some personal things. So there are some issues what I face or in daily life. So there are, yeah, some I want some changes in my life, or I want grow. I want like explore. It is my like dream to explore the whole world. And yeah, if I struggled or if I want, so I can. One day I can if I want. और बाकी तो फिर depends to God. हाँ, बढ़िया. This is such a lovely and, you know, touching thing that you just said. And abhi, it will, I mean, you know, as I said, it's almost 9:45. Yes, Late हो रहा है. It's a weekend, you know. So unless you have anything more to say, this may be a good point to close this conversation. But stay connected, and, you know, continue conversations I just differently. want Hmm. to I just want to send a message to all the community और like जो community के हैं भी और जो नहीं भी हैं बताइए. कि like struggle is life. अगर लाइफ में स्ट्रगल ही नहीं होगा एंड चैलेंजेस नहीं होंगे तो फिर जीने का मजा कहाँ से आएगा. लाइफ को कंटिन्यू करना है, जीना है और अच्छे तरीके से जीना है और दुनिया को ये दिखाना है कि नहीं, हम किसी से कम नहीं है. हम किसी से मतलब जैसे मैं मेरी सोच है कि मैं ये सोचता हूँ कि कोई भी ऐसा काम नहीं जो मैं ना कर सकूं. मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ. और ऐसा है भी, ऐसा प्रैक्टिकली भी है. तो प्रैक्टिकल की मैंने जो भी नई चीजें करने की कोशिश करी है, आई विल डू. मतलब मैंने वो चीज कर ली है. नॉट परफेक्ट बट या मैंने कर लिया उस चीज को. तो मेरे हिसाब से तो मैं यही सोचता हूँ कि लोगों को एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए. जो लोग हार जाते हैं चीजों से, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि कुछ हो गया लाइफ में. पर्सनल लाइफ भी होती है, कभी फैमिली के साथ, कभी पार्टनर से के साथ कुछ भी हो जाता है. तो वो सोचने लगते हैं कि लाइक लाइफ वहीं से खत्म हो गई है. बट नहीं, लाइफ वहां से खत्म नहीं हुई. हाँ, कुछ डिस्पोरिया से, कुछ अपने आप से परेशान होते हैं बहुत बहुत. लाइक दे कांट सर्वाइव और दे डोंट वांट टू सर्वाइव. can't survive or don't want to survive, it is totally different. If they want to survive, so they can. If they don't want to survive, so they committed suicide. They committed some like they मतलब वो अपनी लाइफ को खुद ही हेल बना लेते हैं कि उनको अपनी लाइफ को खुद ही हेल नहीं बनाना है. उनको सरवाइव करना है, आगे बढ़ना है. बहुत बड़ी जिंदगी है, बहुत बड़ी दुनिया है. दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं. सबके साथ में हमें प्यार से रहना है, सरवाइव करना है. पेशेंस बहुत जरूरी होता है. पेशेंस अगर आपके पास है तो यू कैन अचीव एवरीथिंग. अगर आप पेशेंस के साथ में हैं तो सब कुछ आप अचीव कर सकते हैं. बट अगर आपके साथ में कुछ चैलेंज आ रहा है और डेली लाइफ में चैलेंज आ रहा है, यू डोंट वांट टू फेस चैलेंज, तो इट इज नॉट करेक्ट. और ये मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है कि किसी की लाइफ में कोई चेंजेस ना आए. तो आई जस्ट वांट टू send a message to community, those people who are in community and those also who are not in community. uh, See, life is not hell. Life is golden opportunity to alive your life in a
good manner or in a like with happiness or with family or friend or partner. So it is just like stress is a part of life और मतलब जिंदगी का एक हिस्सा होता है परेशानियां। अगर हमारे पास परेशानियां ही नहीं होंगी तो फिर हमें जिंदगी जीने में मजा नहीं आएगा। अगर हम हंस रहे हैं बराबर और हंसते ही चले जा रहे हैं हंसते ही चले जा रहे हैं तो इंसान का मुंह दर्द होने लगता है एक समय पे हंसते हंसते। उसी तरीके से हम रोते हैं तो फिर हमारी आंखें दर्द होने लगती हैं रोते रोते। तो every time is not same, every situation is not same, there are happiness, there are sadness, and just it is depends on you how you survive it or yeah, that's all. Thank you so much. Thank you so much. That was such a uh, I also thanks to you for expressing my like uh, thinking or I just I just want to myself. I just know want to myself more. Like मैंने अपने आप को और ज्यादा समझा इस चीज से एंड I just want to thank you so much for giving me this opportunity to uh, express my feelings and my words or my achievement and I just want to helping those people who are really need help, who are really want help or who are really wants to live. Yes, thank you हाँ, so much. बेहद शुक्रिया। बढ़िया, एक सिंपल स्वीट बट सच अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। हाँ, तो एंड we can't help but we have to end this conversation, but we will continue, even offline online conversations in other spheres on other time, and continue spreading queer trans joy। ओके, वो काफी कम है Yes, दुनिया में। And whatever happens, I think this is also for the people who choose to be biased against us or just question us because of who we are. So um we will, as you say, not just survive, we will live and thrive. Okay, thank you yes, so yes, so much, बेहद शुक्रिया। Thanks a lot थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि everybody। आपने मुझे ये मौका दिया आपके सामने आने का और मतलब लोगों के सामने आकर अपनी फीलिंग्स को बताना और कुछ सीखना और कुछ लोगों को सिखाना अपना मैसेज देना एंड आई विल डेफिनेटली मैं और भी चाहूंगा फ्यूचर में इफ यू वांट माय ओपिनियन इन सम decision or for some for your organization or some other organization. So yeah, I am always available for you and you can approach me for all time for like all kind of work. Yes. Okay, wonderful, wonderful. This is what community partnerships are about, right? The human to human Yeah. love, respect, and the willingness to give, right? Our Yeah. time, Yeah. our Yeah. Yes. energy, our skills, yeah, and most Mhm. importantly, our love and joy. Okay. Yes. Thank you so Definitely. much. Behad Yeah. shukriya. And, Satrangi salam, right? Jai Bhim to आपको everybody. भी शुक्रिया। All right. Take care. All Thank the you. best. Bye. Yeah. And You too. Thank you so yeah. much. Yeah. And also for the people who are going to watch, listen, read, whatever, please interact. Yeah. Yeah. Please continue joining. Spread queer trans joy and love. Share this, Mhm. comment. Okay. And don't Okay. hesitate to DM us if you or anybody needs support. We welcome, Mhm. just Yes, yes, definitely. yeah, we welcome love and and respectful interactions and communication. Mhm. Okay, thank you, Okay, okay, okay. thank you so much again. All the best. Thank Take you. care. Bye. Thank you so much. Bye. Yeah, bye, bye. Take You care. too. Bye. Thanks.